नमस्कार। भवन के इस सफर में हम तमाम टीचर्स, प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिले। आज हमारे साथ श्री अरुण त्यागी जी हैं। आइए बात करते हैं उनके भवन के साथ बीते हुए अपने एक्सपीरियंस के और क्या कोर्स या सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं इसके बारे में भी जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। मैम। हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि भवन जो है अपने आप में संस्कृति को समेटे हुए है और ऐसे में आप उस संस्कृति या उस इंस्टीट्यूट का पार्ट है। आपने कब भवन को ज्वाइन किया और आपके कैसे अनुभव यहाँ पर रहे? I joined the institution in 2006. So you can very well understand and see that it has been a long journey. Right. So the time that I have spent here with my students and with Bulmim has been extremely wonderful. और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है कि 2006 में जब हम कुछ नए कोर्सेज़ की शुरुआत की और फिर बैचेस एडमिशन्स लेना, फिर उनको पढ़ाना और लगातार फिर वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं फिर जो वो वापस आते हैं और बताते हैं दे आर डूइंग सो वेरी वेल, सो इट इज़ वेरी इलेटिंग। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट के बारे में हम जान सकते हैं? Basically, I teach here HR, human resources. So among human resources, there are various elective courses. So because the courses that we run here are professional courses in management. So the students after studying here, they go to the industry. So we teach them things which are very relevant to the industry. That's a reason that we take feedback also from the industry as to what need to be taught to the students. So primarily, I am looking after HR as a subject. HR जो है वो किसी भी कंपनी या मैं कहूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्या होता है खास HR में जो अगर कोई बच्चा यहाँ से उसके बारे में पढ़कर जाता है या किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़कर जाता है तो उसमें डिफरेंस दिख पाता है? देखिए, भारतीय विद्या भवन में चूंकि हम लोग अपनी कल्चर और हेरिटेज से हमारे DNA के अंदर है, तो वही चीज़ when the students come here to study, so the same thing passes on to them. So we are modern, but at the same time we are very much rooted to our culture, and that is precisely one of the reason that why parents would prefer Bharatiya Vidya Bhavan, because here there is a modernity, but at the same time you are rooted with your culture. So our emphasis is on our culture. So that separates our students. Like for example, our students are exposed to one program called as a rural training or the bottom of the pyramid training, where students go to the remote areas, to the areas which are stricken with poverty, and they get the first-hand experience of the poverty that lies in our country. So they get a chance to meet their own brothers and sisters who are very poor, underprivileged. So that sensitizes them. So when these students during their course module here, when they are exposed to such trainings, when they go out, so they are more sensitive, they are more compassionate towards their own brothers and sisters in the country. जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं और आप HR जैसा एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये संस्कृति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। तो बीइंग अ टीचर, अ प्रोफेसर, आप क्या संस्कृति अपने स्टूडेंट्स में देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये थ्रू आउट उनके लाइफ बनी रहे? We emphasize being Bhavanites. First thing is that we must be rooted to our culture. So there should be, when you talk about HR, so HR is nothing but like a people management. Right. So whether you are a doctor, engineer, or whatsoever in life, for that matter, even in journalism. So you are dealing with people. So you're not dealing with machines. So machines do not have any emotions, whereas people have emotions. So that's a reason that why we provide sensitivity training to our students, so that when they go out into the industry, so they are more sensitive towards other, not only sensitive towards themselves. यानी कि आप उनकी सेंसिटिविटी को जिंदा रखने का काम करते हैं, आप उनमें हम्बलनेस होना चाहिए, इसको जिंदा रखने का काम करते हैं। लोगों को एक भ्रम रहता है कि जब भी वो किसी कोर्स को करने जा रहे होते हैं और या किसी एक ऐसे सर्टिफिकेशन को चुनते हैं जिसमें उनको लगता है कि इसके बाद करियर जो है परस्यू किया जा सकता है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब वो चयन कर रहे होते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भवन में जिस तरीके से आप भी पढ़ा रहे हैं और बाकी कोर्सेज भी चल रहे हैं,
तो बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को क्या ध्यान में रखकर करिकुलम सेट किया गया है? देखिए, जैसे ही बच्चे हमारे कैंपस पर आते हैं तो शुरू बात से ही हम लोग उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी की तरफ हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का चौमुखी विकास हो, तो उसके अंदर जैसे हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें म्यूज़िकल इवेंट्स के अंदर, या स्किट्स, ड्रामास, कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, डिस्कशंस। साथ ही साथ बच्चों को बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो फेस्टिवल्स के अंदर बच्चे अपनी जो उनके टैलेंट है उसको शोकेस करते हैं। सो दैट्स अ रीज़न दैट व्हाई वी हैव ऑल द गैमुट ऑफ एक्टिविटीज़ विद इन दी कैंपस, सो दैट स्टूडेंट्स गेट एक्सपोज टू वेरियस थिंग्स। कई बार स्टूडेंट्स को खुद भी नहीं मालूम होता कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, या शायद कभी समाज ने या परिवार के लोगों ने कभी जाना नहीं कि उनको इतने टैलेंटेड हैं। तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हार्नेस करना हम लोगों का काम है, और साथ ही हम कुछ लोगों की हेल्प भी लेते हैं अपने साथ। और जैसे भारतीय विद्या भवन में होता है कि हम लोग म्यूज़िक फेस्टिवल साल में एक बार करते हैं, जो कि बड़े ग्रैंड स्केल पे होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स उसके अंदर भी एज ए स्पेक्टेटर्स होते हैं और देखते हैं। सो दैट्स अ रीज़न दैट व्हाई भारतीय विद्या भवन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्टूडेंट्स जब अपने पढ़ाई के पूरे उस दौर में होते हैं तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है स्ट्रेस। फिर वो पढ़ाई से रिलेटेड स्ट्रेस हो, फ्यूचर से रिलेटेड स्ट्रेस हो, या फिर कभी कभी उनको फैमिली का भी स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर क्या टेक्निक आप लोग यूज़ करते हैं? देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग कुछ सेशंस बच्चों को एक्सपोज करते हैं, जिसमें हम उन्हें बताते हैं। हालांकि कोर्स कोरिकुलम के अंदर भी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक टॉपिक होता है। बहुत सारे कोर्सेज के अंदर, मेरे कोर्सेज से मेरा अभिप्राय है सब्जेक्ट्स के अंदर, दैट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। सो इन दिस कॉर्पोरेट लाइफ पीपल विल हैव अ स्ट्रेस because people are demanding, companies are demanding, so they have to slog very hard. So obviously stress is there. So how to manage stress, इस बात की शुरुआत क्लास में थोड़े सेशंस लेके, या कई बार हमारे यहाँ योगा सेशंस होते हैं, और डी स्ट्रेस करने के लिए टेक्निक्स बच्चों को बताई जाती हैं शुरुआत से। प्रोफेशनलिज्म के आप ऐसे कुछ कोर्स या सब्जेक्ट आप खुद पढ़ा रहे हैं, और प्रोफेशनली जब बच्चा ग्रो करता है, बाकी इंस्टीट्यूट्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो उनको सिर्फ प्रोफेशनली तैयार किया जा रहा है। भारतीय विद्या भवन किस तरह से प्रोफेशनल के साथ साथ उनको उनका पर्सनल लेवल पर भी ग्रो करने का एक चांस देता है, सोशल लेवल पर भी ग्रो करने का चांस देता है? देखिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे एथिक्स के बारे में बच्चों को अलग से बताया जाता है, मोरल्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं। सो बच्चों को राइट एंड रॉन्ग के बारे में शुरू से बताया जाता है, सो दैट दे कैन डिफरेंशिएट बाय देमसेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ऑल्दो राइट एंड रॉन्ग इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, व्हाट मे बी राइट हियर इन आवर कॉन्टेक्स्ट may be wrong in any other context. So the students develop that sensitivity towards what is right and what is wrong. So that's the reason why they forge ahead with that thinking of right and wrong. So they tend to be very ethical, and they exhibit the ethical behavior not only within the campus and also when they go outside the campus. इंस्टीट्यूट में एनरोल करवाने के साथ ही ना दिमाग में स्टूडेंट के हमेशा आता है कि प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है जी, कि हमें सही समय पे प्लेसमेंट मिल पाएगा या नहीं, जॉब मिल पाएगा या नहीं, तो उसको लेकर भवन की क्या तैयारी है? देखिए, भवन्स में पहले से ही प्लेसमेंट के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे वी टेक केयर कि स्टूडेंट्स जब अपना कोई भी कोर्स फिनिश कर रहे हैं तो उसके बाद उनके लिए सही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उनको। तो उसके लिए हम लास्ट के कुछ 7-8-10 महीनों में काम करना शुरू कर देते हैं। कंपनीज हमारे कैंपस पर आती हैं, कई बार स्टूडेंट्स कैंपस पे अगर कंपनी नहीं आती है तो कहीं पूल कैंपस होता है, वहाँ पर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोफेशनल अ प्लेसमेंट ऑफिसर। भवन को 100 साल पूरे होने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने काफ़ी समय पहले ही भवन को ज्वाइन किया। जी। तो इस 100 साल की जर्नी को आप कैसे देखते हैं और कैसे अपनी खुशी को आप व्यक्त करना चाहेंगे? Well, I started my career from the industry. So in industry, really every time money matters. Correct. But when I came here, the one thing that I realized that money does not matter here. So we are not driven by money. In fact, there have been many instances where in some capacity I
asked my seniors to raise the fees for certain program, but nobody agreed to raise the fees. Oh, nice. Right? That we are not here to earn profit. We are not here to earn money. So that's some, radical difference that I found out between the organization that I have worked with in my past, and that is also one of the reason that I am staying with this organization for such a long time. Nice. Thank you so much, sir. आपने My अपना pleasure. टाइम, अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया. Thank you. Pleasure. Thank you.